Hello, students. I hope you all are doing good. So, today I'm starting a new series. We are starting a new series of our class 6th English NCRT, Purvi. And the first unit is fables and folk tales. Tales means stories. The short fable means short stories. And folk tales means the tales which are spoken in a oral way so that a moral lesson can be given to the people. So the first chapter of our first unit is a bottle of dew. There's a word dew. What the word dew means? Dew means when the water droplets forms in the night time in winter season or due to winter due to little bit cold forms on the leaves. This water is called dew. In Hindi we can say जो ओस की बूंदें हमारे पास होती हैं that is dew. So let us do these activities before we read. First, circle the pictures that matches with each word. Check your answer by sharing them with your classmate and teacher. The first word is worried. So we can see two girls here. One seems to be happy while the other seems to be worried. This girl in the picture seems to be worried. A second word is plantation. This is the picture of a plant while this is the picture of a plantation. A plantation when there are many trees. The third is sage. Sage. We can say saint. Sage means saint. The person in the orange attire is the sage. And fourth is surprise. There are two boys, one having an arrogant expression while the other is showing the surprising expression. So this boy shows the expression of surprise. Now we have a second exercise. Answer these questions and discuss them with your classmate and teacher. Think of a time when you worked hard. What did you do then? एक ऐसे टाइम के बारे में आपको सोचना है, उस टाइम के बारे में जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो. Mainly students work hard during the exams. Okay. Second question, how did it help you? If you work hard during your examinations, how this hard work helps you to score good marks in the examinations? If you work hard, then you can score good marks. How did it make you feel? अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप कैसा फील करोगे? यू विल फील गुड, यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ व्हेन यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स. Then we'll move forward and let us start reading the chapter. Now we'll read the first part of this chapter. Let us read. Ramnath was the son of rich landlord. There is a person whose name was Ramnath. He was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land. Large tracts of land means large areas of land. यानी कि बहुत बड़े बड़े खेत, इस टाइप में large areas of land, large tracts of land. Okay. When he died, जब रामनाथ के फादर की डेथ हुई, when रामनाथ फादर died, he left him large tracts of land. उन्होंने रामनाथ के लिए लैंड के बहुत बड़े बड़े एरियाज यानी कि बहुत बड़े खेत उसके लिए छोड़ के गया. But Ramnath did not spend even one day looking after his land. लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन उस लैंड की तरफ, उन खेतों की तरफ जाकर नहीं देखा. This was because he has a funny idea. ऐसा इसलिए क्योंकि रामनाथ के पास एक funny idea था. What is the idea? We'll read. He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. Ramnath believed that there is a thing exists which is called magic potion. Firstly, listen, what is potion? Potion is a liquid with magical properties. एक ऐसा liquid जिसके अंदर कुछ ना कुछ magical properties होती हैं. We call that thing potion. It's potion, P-O-T-I-O-N. Potion, not portion. Portion means part. Potion means a liquid with magical properties. So Ramnath believed that a thing like magic potion exists and this magic potion can change anything into gold. ये magic potion किसी भी चीज़ को gold में convert कर सकता है. He spent all his time to learn more about the potion. रामनाथ ने अपना most of time कहाँ spend करा? उस potion के बारे में ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, उस potion के बारे में learn करने के लिए. People cheated him often, promising to tell him about it. And Ramnath didn't give up. His wife Madhumati was tired of this.
उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो सब ये चीज़ देख के थक चुकी थी एंड ऑल्सो वरिड, और परेशान भी हो चुकी थी, बिकॉज सी सा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख रही थी कि रामनाथ इस मैजिक पोशन के पीछे कितना सारा पैसा स्पेंड कर रहा है, उस पर कितना ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहा है। शी वॉज श्योर डैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, उसको ऐसा लगता था, मधुमती को ऐसा फील होने लग गया था कि कुछ टाइम के बाद शायद उनके पास एक भी पैसा ना बचे। सो मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे a famous sage called Mahipati. What is the name of the sage? Mahipati. A famous sage Mahipati came to their town. वो महिपति जो सेज थे वो उनके टाउन में आए। रामनाथ became his follower and asked him about the potion. रामनाथ जो था उसका फॉलोवर बन गया था, फॉलोवर मीन्स डिसिपल, चेला बन गया था, एंड asked him about the potion, और उन्होंने फिर उस सेंट से पोशन के बारे में पूछा। To his surprise, the sage answered, Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you can make such a potion, but it is difficult. तो सेज ने कहा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, मैजिक पोशन बनाना पॉसिबल है। मेरी हिमालयाज़ की, जब मैंने हिमालयाज़ को ट्रैवल करा था, जो वहाँ की जो मेरी जर्नी थी, उस टाइम पे मैंने इस चीज़ के बारे में देखा था कि हम मैजिक पोशन को कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथ ने कहा टेल मी, प्लीज़ मुझे बताओ। रामनाथ नॉट बिलीविंग हिज लक, रामनाथ को उसको अपने लक पे बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, मैजिक पोशन रियल में एग्जिस्ट कर। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। जो अब सेज है वो कह रहे हैं कि तुम्हें एक बनाना प्लांट उगाना पड़ेगा और उसको रेगुलरली अपने हाथों से पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, और विंटर्स के टाइम पे मॉर्निंग में उसके ऊपर ड्यू कलेक्ट हो जाएगी। यहाँ हमारे पास सेम वर्ड आया ड्यू। ड्यू मीन्स स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट, कि रात के टाइम पे जो पानी की बूंदें पत्तियों पे इकट्ठा हो जाती हैं उसको हम ड्यू बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे पानी की बूंदें लीव्स के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं विंटर के टाइम पे। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, तुम्हें इस ड्यू को कलेक्ट करना है और इसको बॉटल में स्टोर करना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me. जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू इकट्ठी हो जाए, यानी कि 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी हो जाएं, तो तुम उसको मेरे पास लेके आओगे। I will chant some magical words which will turn it into a magic potion. और फिर सेज कहते मैं उनके ऊपर कुछ वर्ड्स चैंट करूँगा जिसकी वजह से वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। चैंट मीन्स टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, कि किसी वर्ड्स को रिपीट करना, किसी फ्रेज को रिपीट करना। अ ड्रॉप ऑफ वाटर विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, फिर एक ड्रॉप ऑफ वाटर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। रामनाथ वॉज वरिड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। रामनाथ बहुत वरिड हो गया और कहता है कि विंटर्स तो कुछ मंथ्स के लिए आती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, मुझे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईयर्स यूज़ हो जाएंगे मेरे। यू कैन प्लांट एज मैनी प्लांट्स एज यू वॉन्ट बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ऑन हैंड्स। नाउ what the sage said to Ramnath, that you can plant as many banana plants as you want, कि तुम जितने भी बनाना प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो, जितने भी बनाना प्लांट्स तुम उगाना चाहते हो, तुम उतने बनाना प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, तुम्हें उनकी देखभाल खुद करनी होगी। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ऑन हैंड्स, और ड्यू को सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड से कलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी देखभाल भी खुद करनी है और उसको अपने ही हैंड से कलेक्ट करना है। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चंस। अ फर्स्ट क्वेश्चन इट, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ क्या बिलीव करता था। हमने पढ़ा रामनाथ बिलीव क्या करता था, दैट मैजिक पोशन इज अ थिंग दैट एग्जिस्ट्स एंड इट कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू गोल्ड, कि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है
और वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सेज हेल्प रामनाथ? सेज ने रामनाथ की हेल्प कैसे करी? सेज ने रामनाथ को क्या बताया कि हाँ ऐसा मैजिक पोशन एग्जिस्ट करता है, और उसको पूरा वे बताया कि तुम कैसे ड्यू को कलेक्ट कर सकते हो। बाय प्लांटिंग बनाना ट्रीज यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू and with by your own hands. And he informed Ramnath in the starting of the chapter that during his journey to the Himalayas, he heard that this kind of magic potion exists. Now the third question, do you think Ramnath will be able to collect the dew? Give a reason. क्या आपको लगता है रामनाथ ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा? इसके लिए एक रीज़न दो। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि रामनाथ इस पे बहुत ज़्यादा टाइम से वर्क कर रहा है ड्यू कलेक्ट करने के ऊपर, मैजिक पोशन को बनाने के ऊपर, and also he spent a lot of money on this. So according to the dedication of Ramnath, yes, we can say that he will be able to collect the dew. Now come the next part of our chapter. Ramnath went home, and after talking to his wife, he started cleaning his large fields which has been lying empty for all these years. रामनाथ जैसे ही अपने घर गया, उसने अपनी वाइफ से बात करी और अपने लार्ज फील्ड्स को, जो उसके ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड उसके फादर छोड़ के गए थे, लार्ज फील्ड्स, उनको क्लीन करने लग गया। विच हैज़ बीन लाइंग एम्प्टी फॉर ऑल दीज ईयर्स, जो कि पिछले बहुत सालों से खाली पड़े थे, वहाँ पे कोई भी प्लांटेशन नहीं था, कोई भी क्रॉप नहीं उगाई गई थी। There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully, and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. Now, उसने बनाना ट्रीज को, बनाना प्लांट्स को रो बाय रो प्लांट करना स्टार्ट किया, एंड टेंडेड मीन्स लुक आफ्टर, यानी कि देखभाल करना, और उनकी देखभाल करी बहुत ध्यान से और खुद से करी। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ, जब विंटर का टाइम आया, ठंड का टाइम आया, उसने अपने हाथों से खुद उस ड्यू को कलेक्ट करा, जो कि विंटर के टाइम पे लीव्स के ऊपर फॉर्म होती है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, रामनाथ की वाइफ ने भी उसकी हेल्प करी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती जो बनाना क्रॉप है उसको इकट्ठा करते हैं, गैदर मीन्स इकट्ठा करना। टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, वो क्रॉप को इकट्ठा करती है, उसको मार्केट में सेल कर देती है और उसको उसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलता है। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। जैसे जैसे बहुत से साल बीतते गए, रामनाथ और भी ज़्यादा बनाना प्लांट्स को उगाते गया, और ऐसे ही करते करते एक टाइम के पास उसके पास एक बहुत ज़्यादा बड़ी बनाना प्लांटेशन बन गई, एक पूरी बनाना प्लांटेशन बन गई। उसने छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करा, कुछ कुछ पेड़ उगाने से स्टार्ट करा, धीरे धीरे उसने और ज़्यादा पेड़ उगाए, बनाना प्लांट्स उगाए। सो उसके पास एक बनाना प्लांटेशन बन के तैयार होगी। एट द एंड ऑफ 6 years he finally had 5 liters of dew, और पूरे 6 साल मेहनत करने के बाद, 6 साल काम करने के बाद उसके पास 5 लीटर ऑफ ड्यू था। उसने उन बनाना प्लांट से 5 लीटर ड्यू एक्सट्रैक्ट कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था। Carefully he muttered to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. रामनाथ बॉटल को बहुत केयरफुली उस सेज के पास लेके जाता है, और सेज स्माइल करते हुए उसके ऊपर, बॉटल के ऊपर कुछ मटर करता है उस वाटर के ऊपर। मटर मीन्स धीरे सी आवाज़ में कुछ बोलना, स्पोक इन अ लो वॉइस, एक धीरी हल्की सी आवाज़ में कुछ बोलना। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, फिर वो बॉटल रामनाथ को वापस देता है और उसको बोलता है ट्राई इट आउट, अब इसे ट्राई करो। रामनाथ sprinkled a few drops on copper vessel and waited for it to turn into gold. This is cheating, he told the sage. This is cheating, he told the sage. उसने सेज को बोला कि ये चीटिंग है, this is not fair. I have wasted 6 precious years of my life.
मैंने अपनी लाइफ के 6 प्रीशियस मीन्स इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल 6 वैल्यूएबल ईयर्स को मैंने अपनी लाइफ के इसके ऊपर वेस्ट किया। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती। लेकिन जो सेज था महीपति, उसने सिर्फ स्माइल करा और रामनाथ की वाइफ मधुमती को बुलाया और उसको आगे आने के लिए कहा एंड टू कम फॉरवर्ड। शी केम विद अ बिग बॉक्स। एक वो बहुत बड़े बॉक्स के साथ आई। When she opened it, inside shine stack of gold coins. जब उसने उस बॉक्स को ओपन करा तो उसमें गोल्ड कॉइन्स का ढेर लगा हुआ था और वो गोल्ड कॉइन्स शाइन कर रहे थे। Now the sage turned to very surprised रामनाथ and said, अब सेज ने सरप्राइज हो गया रामनाथ इस चीज़ को देख के और उसने जो सेज है उन्होंने रामनाथ की तरफ टर्न करा। There is no magic potion that can turn anything into gold. फिर उन्होंने कहा मैजिक पोशन जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। You worked hard on your land and created this plantation. जैसे ही तुमने अपने लैंड के ऊपर मेहनत करी और तुमने एक प्लांटेशन बनाई। While you looked after the trees, your wife sold the fruits to the market. जब तुम अपने ट्रीज की देखभाल कर रहे थे तुम्हारी वाइफ ने जो फ्रूट्स है उनको मार्केट में सेल कर दिया, फ्रूट्स को मार्केट में बेच दिया। That's how you got this money. वहीं से तुम्हारे पास ये मनी आई है। It was your hard work that created this wealth. ये सिर्फ तुम्हारा हार्ड वर्क है जिसने वेल्थ को क्रिएट करा है कि मधु आपने सिर्फ बनाना प्लांटेशन के ऊपर हेल्प करी और आपकी वाइफ ने जो फ्रूट था उसको मार्केट में सेल करा और उससे ये सारा धन इकट्ठा करा। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में पहले बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, शायद तुम मेरी बात को नहीं सुनते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रिक करा, मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक प्ले करी, एक ट्रिक आजमाई। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. रामनाथ उनकी बात को समझ गया, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझा, उसकी बातों को समझा। विजडम मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग, बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं। रामनाथ ने उनकी बुद्धिमत्ता को समझा, इन वर्ड्स के पीछे के मीनिंग को समझा और आगे अपने प्लांटेशन पे और भी ज़्यादा हार्डवर्क करा उस दिन के बाद से। So this is the end of our chapter. The chapter is written by Sudha Murthy. Okay. Now let us discuss these two questions. Why was Ramnath angry? Ramnath angry क्यों हो गया था? We have seen that when the sage Mahipati gave the bottle of dew to Ramnath and he sprinkled the drops of water on the copper vessel and then the copper vessel didn't convert into gold. That's why Ramnath got angry. Our second question is, how did Ramnath and Madhumati create wealth? रामनाथ और मधुमती ने इतनी वेल्थ कैसे क्रिएट करी? रामनाथ जो था उसने अपने प्लांटेशन पे हार्ड वर्क करा और मधुमती ने उन फ्रूट्स को मार्केट में सेल करके ये सारी वेल्थ को इकट्ठा करा। So this is our chapter and in the next video we'll do the question answers and exercise of this chapter. Thank you. See you later. Goodbye. Take care.